So good morning everyone, and let's continue with the AVL tree which we left just before your mid started. So we were discussing AVL tree. What is AVL tree? AVL tree is a self-balancing binary search tree. It is a BST, binary search tree. So lesser on the left, greater on the right, everything perfectly managed. Along with that, we additionally calculate the balance factor of each node, and the valid values for balance factors are 1, 0 and -1. If you have something else than that, then we say it's imbalanced. We define the type of imbalance, maybe LL, RR, LR or RL. We have seen those examples also. How do we define LL, RR, LR, RL? So with respect to imbalanced node, you are going to find out where is your new node, and you will only check two levels. इम्बैलेंस्ड नोड से आप नए नोड का रास्ता देखोगे दो लेवल तक. That will give you LL, LR, RL, RR, and those imbalances gives you the rotation also. So we have discussed if there is LL imbalance, left to right, one rotation. And we have seen the example. If it is RR, one rotation from right to left. We have also seen that example. If it is LR, so नया node left जाके right side में कहीं ना कहीं है. So if it is LR, then there is a need of two rotations. पहला rotation subtree पे, दूसरा rotation imbalanced node पे. पहला rotation जब perform करते हो तो intermediate tree मिलता है आपको. When you do the final rotation, second one, then you have a final tree. You have to recalculate balance factor for final tree only, and have seen those examples also. And this is where we stopped. We have seen these examples. So we have seen LL, RR, LR. Let us see RL now. तो पुराने वाले भी कुछ ना कुछ रिवाइज हो जाएंगे साथ में. Let's continue. Assume that you have AVL tree already, where node A, node B, node C are balanced one with balance factors like 0, 0 and -1. And there are few subtrees like T1, T2, T3, T4 with given heights. H, H-1, H जो भी है already height है. And based on those heights, we have calculated balance factor of ABC, and we found this is AVL tree. Now let's say that's your current status, and you are inserting a new node somewhere in T2. T2 में आप कोई नया node insert करते हो, and that leads to the increment of height. T2 की height 1 से increase होती है. So earlier it was H-1, now it becomes H. एक नया नोड डालने की वजह से मान लो कि T2 की हाइट 1 से इंक्रीज हो गई. Now if that happens, let us recalculate balance factors. तो C का बैलेंस फैक्टर क्या होगा? C के लेफ्ट में कितनी हाइट है? H, और राइट में H-1. So H minus H plus 1. So C का बैलेंस फैक्टर हो गया 1. ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलेगा. आगे बढ़ते हैं. B का बैलेंस फैक्टर 1 प्लस H, और यहां पे ओनली H. So 1 plus H minus H, 1. Still no problem. Okay, let's continue. A का बैलेंस फैक्टर देखते हैं. A के लेफ्ट में कितना है? H, और राइट में कितना होगा? 1 प्लस 1 प्लस H, मतलब H plus 2.
H माइनस ब्रैकेट में H प्लस 2, H गया -2. -2 is the balance factor of A, and we have a problem there. That's not a valid balance factor. ठीक है, अगर वैलिड नहीं है तो पहले चेक करो कि आपका नया नोड कहाँ गया. What is the type of imbalance here? So with respect to imbalance node A, आपका नया नोड जो T2 के अंदर गया है, that is on right side and then left side. एक बार राइट गए और उसके बाद लेफ्ट गए. So this gives you RL imbalance. RL type डिसाइड हो गया. Now in terms of RL आपको क्या करना है? You again need to go for 2 rotations. पहला रोटेशन सब ट्री पे और वो हो जाएगा लेफ्ट टू राइट. जहां पे इंसर्ट किया वहीं तो हेवी हुआ ना, तो ऑपोजिट साइड रोटेट करो. एंड देन द सेकेंड रोटेशन विल बी ऑन imbalanced node, that will be the opposite direction of the first one. तो पहला रोटेशन अगर आप B पे मारते हो तो B जाएगा नीचे, C आएगा ऊपर. एंड देन सेकंड रोटेशन अगर आप A पे लगाते हो तो A जाएगा नीचे और C आ जाएगा ऊपर. इट इज समथिंग लाइक दिस वन. कुछ इस तरह से है ABC. पहला रोटेशन B पे मारो तो this is your intermediate process tree, and then when you perform the second rotation on A तो C ऊपर आ जाएगा. Now this will be ABC final situation. अब when you perform rotations left right child, देख लो कहाँ जाएंगे. बीच वाला लटकेगा and then we take a decision left जाना है या right. Remember those process. So क्या होगा, A के लेफ्ट में T1 ऐसे ही रहेगा, no problem. Look, when you perform first rotation on B तो C का राइट चाइल्ड बीच में लटकता है और वो जाएगा B के लेफ्ट में. T3 जो C का राइट चाइल्ड था वो अब बन जाएगा B का लेफ्ट. एंड T2 जो पहले C का लेफ्ट चाइल्ड था वो अब राइट चाइल्ड बन जाएगा A का. हाउ यू टेक दीज डिसीजंस? कोई बात नहीं, पहले बीच में लटकाओ उसको और देन वैल्यू देख लो क्या है. बड़ी वैल्यू राइट जानी चाहिए, छोटी वैल्यू लेफ्ट जानी चाहिए. दैट्स इट. बिकॉज इट इज अ सर्च ट्री, वी कैन easily check those values and we can take a decision where we should keep it. So let's see the example. We want to see the example of RL. Let's start with inserting a value. 15. Calculate balance factors. No problem. This is AVL. Next, insert 25. Calculate balance factors. No problem. This is AVL tree. Next, insert 23. Calculate balance factors. And we have a problem here. With respect to imbalanced node 15, newly created node 23 कहाँ पे है? एक बार right and then you go left. So this says it is RL. अगर RL imbalance है तो दो rotation चाहिए. पहला rotation on sub tree, दूसरा rotation on imbalanced node.
लेट अस परफॉर्म दोज रोटेशंस. पहला रोटेशन मारते हो तो 15 जैसे है वैसे ही. फर्क कहाँ पे पड़ेगा? 25 जाएगा नीचे और 23 आ जाएगा ऊपर. Then we perform the second rotation on 15. 23 आ जाएगा ऊपर, 15 जाएगा नीचे. No change in 25. This is your final tree. Let us calculate balance factors. 0, 0 and 0, perfectly balanced, no problem. AVL. This was a very basic example, easy one. Let us go and insert few more nodes here and then we'll see RL कैसे बनता है. Insert 30. And recalculate balance factors. No problem. Let's continue. Insert 27. And recalculate balance factors. As soon as you found a problem, stop there. 23 का बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है जब आपको 25 पे इम्बैलेंस नोड मिल गया. लेट अस रीबैलेंस इट. बाद में देखेंगे क्या होता है. पहले 25 को बैलेंस कर लो, 23 को बाद में देखेंगे, वो खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा. सो विथ रिस्पेक्ट टू 25, राइट एंड देन लेफ्ट. RL पहला रोटेशन सब ट्री पे, दूसरा रोटेशन इम्बैलेंस नोड पे. If we perform those rotation, let me directly draw the final tree. You have to draw every steps, okay? This will be the result. 27 ऊपर जाएगा, 30 नीचे, और दूसरी बार में 27 ऊपर आएगा, 25 नीचे जाएगा. So this will be your final tree. And recalculate balance factors. So ready with that? Okay. Now insert 26. कहाँ जाएगा? 25 के राइट में. ओके, 26. Recalculate balance factors. 0, -1, 1 and -2. So we found a problem at 23. With respect to 23, newly created node 26 कहाँ पे? पहले राइट एंड देन लेफ्ट. RL. दो ही लेवल देखने. सो दिस इज RL. RL क्या करता है भाई? पहला रोटेशन सब ट्री पे एंड दूसरा रोटेशन इम्बैलेंस्ड नोड पे लगाओ. लेट मी परफॉर्म दीज रोटेशंस. पहला रोटेशन परफॉर्म करते हो तो बाकी का ट्री एज इट इज ऐसे ही लिख दो. लेट अस फोकस ऑन दैट सब ट्री. द फर्स्ट रोटेशन 27 नीचे जाएगा. अब 27 के राइट में जो था ऐसे ही लिख दो, नो चेंज देयर. 25 ऊपर आएगा. अब 25 के राइट में जो 26 था वो बीच में लटक रहा है क्योंकि उसके राइट में तो 27 आ गया है.
तो अब डिसाइड करो 26 कहां जाएगा, 27 के लेफ्ट में जाएगा वो। रिमेंबर दिस इज योर इंटरमीडिएट ट्री। अभी तो एक ही रोटेशन परफॉर्म हुआ, तो यहां पे कोई बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डो नॉट कैलकुलेट बैलेंस फैक्टर, वरना आप बोलोगे सर 25 फिर से इम्बैलेंस हुआ। So don't calculate balance factor yet. Go and perform the second rotation. So let's perform that second rotation. 25 जाएगा ऊपर, 23 आ जाएगा नीचे, और 23 का लेफ्ट एज इट इज। 25 के राइट में जो था ऐसे ही लिखो। और 25 का लेफ्ट कुछ है ही नहीं, तो बीच में कुछ लटकेगा भी नहीं, ठीक है, काम खत्म। Now let us calculate balance factors. So when you are done with both rotations, आपका ट्री 100% बैलेंस हो ही जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपने गलती की, पक्का समझ लो। When you perform these rotations, your final tree will always be balanced one. अगर नहीं बना तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है, आगे चेक कर लो। Well, that's the last imbalance type for insert operation, RL. So we have LL, single rotation, RR, single rotation, LR, two rotations, RL, two rotations. If it is a single rotation, directly on the imbalance node. If there are two rotations, तो पहला जाएगा सब ट्री पे, दूसरा आएगा imbalance पे. So that completes your insert operation on AVL. Up to you. जब भी टाइम मिले, follow this. Create your AVL tree. Right now, we will continue and we go for the delete operation. So we want to see delete operations on AVL now. Insert देख लिया, delete देखते हैं. Look, AVL is a self-balancing. हाँ, balancing तो ठीक है, लेकिन क्या है वो? Binary search tree. So delete operation will be similar to binary search tree. याद करो BST में delete operation क्या था? No child, one child and two children. 3 केस थे, तो वही 3 केस यहाँ पे भी बनेंगे. We'll go and search the value first. वैल्यू को ढूंढो, जैसे ही वैल्यू मिलती है आप चेक करो कितने चिल्ड्रन है उसके. नो चाइल्ड, आसानी से डिलीट. एक चाइल्ड, उसको रिप्लेस मारो. 2 चिल्ड्रन, अरे प्रॉब्लमेटिक है. इन ऑर्डर प्रीडिसीजर या तो फिर इन ऑर्डर सक्सेसर लाना पड़ेगा, रिप्लेस करेंगे और उसको डिलीट करने जाएंगे. Then your delete process will be completed. अब ये BST तो है, एडिशनली ये क्या है? AVL, मतलब एडिशनल प्रोसेस बैलेंस फैक्टर का. Once you delete a value, after deleting a value, calculate the balance factor again. फिर से आप बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करो. अगर रिजल्टिंग AVL ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका काम खत्म. लेकिन जब आप बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हो एंड इट हैज इम्बैलेंस्ड वैल्यू, देन उसको रीबैलेंस करने के लिए वापस से रोटेशन, फिर से रोटेशन करेंगे. अब रोटेशन जो है वो ट्री के अंदर रोटेशन जो हमने देखे वैसे ही परफॉर्म होते हैं, लेकिन वो रोटेशन कौन सा होगा? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एक होगा, 2 होगा, दैट वी हैव टू डिसाइड. So just like LL, RR, LR, RL, those were the imbalanced types of insert operation.
when we go for delete, we have R0, R1, R minus 1, L0, L1, L minus 1 types. Imbalance types. Let us focus on R. Left उसका mirror होगा. We'll discuss it. So let us focus on R0, R1, R minus 1 at present. And what it indicates, it says when you have imbalanced node, with respect to that imbalanced node, आपने जो भी value delete की वो कहाँ पे थी? It was in a right subtree. अगर आप right side से delete करते हो तो R fix हो गया. जो भी value आप delete करते हो, if you have deleted that value from the right side, then R is fixed. And then the second number that comes from the opposite side, बैलेंस फैक्टर. राइट से अगर डिलीट किया तो लेफ्ट का बैलेंस फैक्टर देखो. अगर लेफ्ट का बैलेंस फैक्टर 0 है तो नोटेशन हो गया R0. अगर ऑपोजिट साइड का बैलेंस फैक्टर 1 है देन इट बिकम्स R1. एंड इफ दैट ऑपोजिट साइड बैलेंस फैक्टर इज -1 देन it becomes R minus 1. So it is something like with respect to A, because मान लो कि A imbalance हुआ है. So with respect to A, you have deleted a node from right side. This is the node that you have deleted. So you are deleting a node from right side. Now at that time, opposite side, मतलब B, उसका balance factor क्या है? देखो, if that balance factor is 0, then this is R0. If it is 1, then it becomes R1. If it is -1, then it becomes R minus 1. Okay? और इसका मिरर हो सकता है. अगर आप लेफ्ट से डिलीट करते हो तो L फिक्स हो गया. And check out the balance factor on right side. अगर वो 0 है तो L0, अगर वो 1 है तो L1, -1 है तो L minus 1. So L0, L1, L minus 1 will be same, just the mirror effect of R0, R1, R minus 1. Look, when we are talking about mirror, if you draw your axis, then this is how you have 1, 0 and -1. So here you say this is R0, this is R1, this is R minus 1. Then here you say L0, L1, L minus 1. Mirror effect will be in the process. Mirror effect will be in the process. R0 में जो करते हो जस्ट उसका रिवर्स L0 में होगा, क्योंकि वो तो y एक्सिस पे है, बीच में ही है. हाँ, लेकिन R1 में आप जो करते हो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस यू आर गोइंग टू डू इन L minus 1. अगर R1 में 2 रोटेशन होते हैं तो L minus 1 में 2 रोटेशन होंगे. That's how it goes mirror. Now at the end of delete operation we are going to create that entire table जहाँ पे सारे rotations हम लिखेंगे. Let us go through R0, R1, R minus 1 one by one. पहले R0 देखते हैं. So we'll again go for the same. Let's say we have AVL tree already given, जहाँ पे A का बैलेंस फैक्टर 1, B का बैलेंस फैक्टर 0 और T1, T2, T3 कोई सब ट्री है जिनकी हाइट h है. Let us assume we delete a node from T3. T3 में से एक नोड डिलीट किया जिसकी वजह से T3 का हाइट कम हो गया h minus 1. When it becomes h minus 1, calculate the balance factors. B के लेफ्ट राइट में h तो B का तो 0 है, चलेगा.
लेकिन ए का बैलेंस फैक्टर बिगड़ जाएगा। क्यों? ए के लेफ्ट में 1 प्लस एच, जबकि ए के राइट में h माइनस 1 हाइट है। So that is something like 1 plus h minus h minus 1. Two. And that creates a problem. So 2 creates a problem with respect to imbalanced node A. आपने नोड कहां से डिलीट किया? राइट साइड से, तो R फिक्स हो गया। On the opposite side, what is the balance factor? 0. So R0 notation fix हो गया। Now this is R0 imbalance type. ठीक है, करना क्या है? A single rotation on imbalanced node, left to right. जहां से डिलीट किया वहीं पे कम हुआ ना, राइट साइड से डिलीट किया वहां पे कम हो गया, तो और चाहिए लेफ्ट से राइट लेके आओ। लेफ्ट टू राइट रोटेशन, अ सिंगल रोटेशन। R0 रिक्वायर्स सिंगल रोटेशन। ए नीचे जाएगा, बी ऊपर आएगा, बी का राइट चाइल्ड ए का लेफ्ट बन जाएगा। रेडी? सो T2 which was the right child of B becomes a left child of A here, क्योंकि वो बीच में लटक रहा था। So that's a simple single rotation required to solve R0. See some example? Okay. Consider a given tree. Calculate balance factors first. 5 का 0, 41 का 0, 12 का 1, 36 का -1, 75 का 0, 20 का 0, 62 का -1 and 45 का 1. No problem. So this is AVL tree. Now it says delete 75. 75 को सर्च करो, मिल गया। 0 चाइल्ड, 1 चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन। 0 आसानी से डिलीट कर सकते हैं। So delete it. Once you delete that node, your resulting tree will be something like this one. Once you delete a node, recalculate balance factors. Again, just like insert, balance factor कहाँ पे अपडेट होंगे? जहाँ पे ऑपरेशन हुआ वहां से लेके रूट तक, बाकी का ट्री एज इट इज। तो ठीक है, यहाँ पे जो है 20 का 0, 12 का 1, 36 का -1, नो चेंज देयर। इतना तो बैलेंस फैक्टर जैसा था वैसे ही। अब 75 को अगर मैं डिलीट करता हूं तो वहां से रूट तक बैलेंस फैक्टर को फिर से कैलकुलेट करेंगे। 62 का बैलेंस फैक्टर 0, 45 का बैलेंस फैक्टर 2, एंड हियर वी हैव अ प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू 45। 75 जो डिलीट किया वो राइट साइड था, और ऑपोजिट साइड बैलेंस फैक्टर मतलब 20 का बैलेंस फैक्टर क्या है? 0. सो दिस इज R0. A single rotation is required on imbalanced node. 45 पे एक रोटेशन मारो, 45 जाएगा नीचे, 20 आएगा ऊपर। 45 का राइट जो था वैसे ही, 20 का लेफ्ट जो था वो भी वैसे ही रहेगा। लेकिन 20 का जो राइट था ना, 36, वो बीच में लटक रहा है। अब वो पूरा सब ट्री ऐसे ही लटक रहा है, तो 36 का जैसे भी है वैसे रहने दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 36 का राइट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट, एज इट इज, नो चेंज दैट। बट अब 36 जाएगा कहां पे? 45 के लेफ्ट में। दिस इज योर फाइनल ट्री। लेट अस कैलकुलेट बैलेंस फैक्टर्स नाउ।
हो गया बैलेंस? रेडी? Remember, when you complete your rotations, resulting tree will always be balanced. अगर नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ गलती किया. So this is balanced one. Fine. हो गया काम खत्म. Ready? Go for the next operation. So this was R0. What about R1? Well, simple. एक AVL ट्री दिया है, राइट साइड से कुछ डिलीट करते हो और लेफ्ट का बैलेंस फैक्टर देख लो, आपको मिल जाएगा R1. Now R1 requires a single rotation. राइट से डिलीट किया, कम हो गया, लेके आओ लेफ्ट टू राइट. Even R1 requires a single rotation. Let us see the example. Consider this is a AVL tree, then balance factors will be something like this one. And then it says delete 75. अगर मैं 75 को डिलीट करूं तो रिजल्टिंग ट्री क्या बनेगा? लेट अस सी. 45, 62, 20, 12, 5 and 36. And then let us calculate balance factor. So 2. And we found a problem. With respect to 45, delete किया 75 जो right था, and opposite side 20 का balance factor 1. So this is R1. Still it requires a single rotation. Let us see. 45 जाएगा नीचे, 62, 20 आ गया ऊपर, लेफ्ट में जैसे था वैसे ही, और 36 जो है वो बीच में लटक रहा है. कहाँ पे रखेंगे उसको? 45 के लेफ्ट में. Then you calculate balance factors. So you'll say, sir, R0 and R1 both are similar. Yes, both are similar. Both require single rotation and both require same rotation left to right. Type अलग है. Process same है, type अलग है. And that indicates you have deleted value from the right side, and at that time the opposite side balance factor was either 0 or 1. So that is R1. दोनों सेम थे, नो प्रॉब्लम, बट लेट अस चेक आउट व्हाट इज R-1. R-1 में क्या होगा? लेट्स सी. मतलब अब पता है, ठीक है, राइट से डिलीट करो और उस वक्त लेफ्ट का बैलेंस फैक्टर -1 होगा. व्हेन वी डिलीट अ वैल्यू, we delete a value from right side, and at that time left side का balance factor -1 होगा, तभी ये R-1 बनता है. But in that case, look, -1 balance factor कब होगा? कोई भी नोड का बैलेंस फैक्टर -1 कब बनता है? जब उसका राइट हेवी होगा. अगर B का राइट हैवी है तभी B का बैलेंस फैक्टर -1 जाता है. हैवी. अगर आप एक ही रोटेशन मारो तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा. लेट्स चेक इट आउट. ए जाएगा नीचे, बी आएगा ऊपर, और बी का राइट बीच में लटकेगा. तो वो कहां जाएगा?
ए के लेफ्ट में, वो ऑलरेडी हैवी था, बी के राइट में हो या ए के लेफ्ट में हो, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है अभी भी। बी का राइट हैवी हो या ए का लेफ्ट हैवी हो, प्रॉब्लम तो वही रहा अभी भी हमारे पास। सो अ सिंगल रोटेशन इज नॉट सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम। अगर ऐसा केस है तो आप बोलोगे कि एक रोटेशन से काम खत्म नहीं होता। हियर यू हैव टू गो फॉर मल्टीपल रोटेशंस। पहला रोटेशन सब ट्री एंड सेकेंड रोटेशन ऑन इम्बैलेंस नोड, जैसे हमने आरएल या एलआर में किया था। So that's the need. Oh, well, in this case, we have to go for double rotations. First rotation will be on the subtree. सब ट्री का राइट हैवी है तो पहले लेफ्ट साइड लेके जाओ। सब ट्री का राइट हैवी है तो राइट टू लेफ्ट पहले लेके जाओ, उसी को पहले बैलेंस कर लो, एंड देन यू परफॉर्म द सेकेंड रोटेशन, योर फाइनल रोटेशन ऑन इम्बैलेंस नोड। So that will be your final rotation on A. And that results in the balanced tree again. आपका रिजल्ट जो भी आएगा वो बैलेंस होगा। Look, if there is a question something like explain imbalance types at insert operation या तो फिर delete operation or something, then you have to explain it with this example A, B, C, T1, T2, T3, T4 and so on, because it is a theoretical question, a short note kind of question, and you have to explain those imbalances with this one. But if you have been given a tree directly and you want to delete or you want to perform delete operation, then let's go for the example. So here it says you have been given a tree. Let's check it out. Balance factors are 0, 0, 0, 0, 0, then minus 1 and 1. So this is AVL tree, no problem yet. Then it says delete 75. 75 का एक भी चाइल्ड नहीं है, आसानी से डिलीट कर सकते हैं। लेट्स डिलीट इट एंड सी द रिजल्टिंग ट्री। 45, 62, 20, 12, 36, 27, 41, and then the balance factors 62 का 0 and 45 का पॉजिटिव 2, -2 नहीं। 45 के लेफ्ट में हाइट 3 और राइट का हाइट 1, 3 minus 1 is 2। प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू इम्बैलेंस नोड, आपने डिलीट किया राइट साइड से और ऑपोजिट साइड का बैलेंस फैक्टर -1 है। R-1 आपको ये बताता है कि आपको 2 रोटेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। फर्स्ट विल बी ऑन द सब ट्री, जिसका राइट हैवी था, तभी तो वो -1 था। सो राइट हैवी को बैलेंस करने के लिए पहले लेफ्ट साइड लेके जाओ, एंड देन यू परफॉर्म द फाइनल रोटेशन सेकंड ऑन योर इम्बैलेंस नोड। सो लेट अस परफॉर्म दोज रोटेशंस। पहला रोटेशन परफॉर्म करते हैं। 20 जाएगा नीचे, 36 उसकी जगह लेगा। 36 के राइट में 41 एज इट इज, लेकिन उसके लेफ्ट में 27 जो था वो बीच में लटक रहा है। अब 27 कहाँ जाएगा? 20 के राइट में। ओके, अब बाकी का ट्री जैसे था वैसे ही, नो चेंज येट। दिस इज योर इंटरमीडिएट ट्री। अभी बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट नहीं करने। लेट अस परफॉर्म द फाइनल रोटेशन। Let's perform the final rotation and after that we will check.
सो 45 नीचे जाएगा और 36 ऊपर आ गया। लेकिन 36 का राइट जो था 41 बीच में लटक रहा है, कहाँ जाएगा वो? 45 के लेफ्ट में। Now this is your final tree. Let's check it out. बैलेंस फैक्टर देख लो। A perfectly balanced tree here. Okay. So that's the final one, R minus 1 imbalance type at the time of delete operation. We have seen R1, R0 and R minus 1. AVL ट्री की प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? When you insert, you have LL, RR, LR, RL imbalances. And when you delete, you have R1, R0, R minus 1, L1, L0, L minus 1. 6 imbalance types. With those imbalance types, rotations क्या होंगे? LL के लिए एक रोटेशन, लेफ्ट हैवी हो गया तो राइट साइड खींच लो। RR के लिए एक रोटेशन, राइट हैवी हो गया तो लेफ्ट साइड खींच लो। LR के लिए 2 रोटेशंस। अब LR आपको बताता है कि नया नोड कहां गया, पहले लेफ्ट जाके बाद में राइट। नया नोड लेफ्ट जाके राइट साइड जो ऐड हुआ था, प्रॉब्लम किया, पहले राइट टू लेफ्ट लेके आओ। इट इज दिस वन। अगर फिर भी कंफ्यूजन होता है तो इस तरह से ड्रॉ करो, LR, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करते हो? फर्स्ट रोटेशन ऑन अ सब ट्री, सेकेंड रोटेशन ऑन अ इम्बैलेंस्ड नोड, so that will give you those rotations. RL उसका मिरर, so those were the rotations to be performed at the time of insert operation. Okay, let's talk about delete operation then. R0 सिंगल रोटेशन, राइट से डिलीट किया, राइट साइड लेके आएंगे। R1 सिंगल रोटेशन, राइट से डिलीट किया, राइट लेके आएंगे। R minus 1 2 रोटेशंस चाहिए, राइट से डिलीट किया, फाइनली राइट साइड लेके आना है, लेकिन पहले लेफ्ट सब ट्री को बैलेंस कर लो। नाउ मिरर, मिरर सिंगल रोटेशन, डबल रोटेशन। रोटेशन को भी मिरर मारो,
Now, this is a cheat sheet for you when you perform insert or delete operation on AVL. जब भी आप परफॉर्म करते हो, सॉल्व करते हो एग्जाम्पल, ये साइड में रख सकते हो. एग्जाम में साथ लेके नहीं जाएंगे, आंसर शीट मिलने के बाद लास्ट पेज पे लिख लेंगे. बट दिस विल हेल्प यू टू डिसाइड which rotation I should perform. कंफ्यूजन ट्री बनाने के बाद नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही आप ये सब डिसाइड करके रख लो. So we'll take a pause here. Think about it. If you have any kind of a doubt, you may ask. So can you perform insert and delete operation if I tell you to perform and if I give you step by step instructions? अगर एक एक करके नंबर देते जाता हूँ और बोलते जाता हूँ इंसर्ट करो या डिलीट करो, हो पाएगा? कैन बी डन, राइट? अगर ये क्लियर है आपके माइंड में तो आप आसानी से कर सकते हो. नया वैल्यू BST की तरह डालेंगे और उसके बाद देखेंगे LL, RR, LR या RL. एक्सिस्टिंग वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं तो BST की तरह ही डिलीट करेंगे और बाद में देखेंगे R0, R1, R-1 या तो फिर L0, L1, L-1. When you perform any rotation on a binary tree, तो रोटेशन तो फिक्स है, मतलब कैसे किया जाता है वो फिक्स है. कौन सा करना है दैट डिपेंड्स ऑन दीज नोटेशंस. लेफ्ट से राइट करूं या राइट से लेफ्ट करूं, वो इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन रोटेशन जैसे होता है वैसे ही होने वाला है. एक नोड नीचे जाएगा, दूसरा नोड ऊपर आएगा और उनके जो भी चिल्ड्रन है परफेक्टली मेंटेन करेंगे. Yeah, so here we complete AVL. Next is B tree, but before we start B tree, we have to understand MB tree. A height balance tree we are talking. AVL tree is a height balanced binary search tree. Binary, सिर्फ लेफ्ट और राइट. जैसे ही आपका डेटा बढ़ता है, व्हेन यू इंक्रीज योर डेटा, साइज ऑफ योर डेटा ऑल ओवर ट्री बड़ा बनेगा. अगर ट्री बड़ा बनता है तो डेफिनेटली उसकी हाइट तो बढ़ेगी. हाइट को आप बैलेंस कर रहे हो, कम नहीं कर रहे हो. So there was a problem in binary search tree कि भाई वो बैलेंस्ड नहीं था, तो हमने हाइट को बैलेंस किया and we have AVL. But still there is a problem with AVL. When you have a large amount of data, your entire AVL tree will be the larger one. तो AVL का हाइट जो है वो अगर बड़ा है तो सर्च करने में वो भी टाइम तो लेगा. So what if still I want to decrease my search time? I need to decrease the all over height. मेरा जो भी सर्च ट्री बन रहा है उसका हाइट कम करना पड़ेगा मेरे को, तभी मैं सर्च टाइम कम कर सकता हूं. तो हर एक नोड के पास एक वैल्यू थी, तो उसके पास लेफ्ट राइट दो पाथ थे, टू वेज. एक ही वैल्यू. इफ आई वांट टू compress my tree,
अगर हाइट से मुझे उसको कंप्रेस करना है, then definitely few values are going to be merged. एक नोड में एक वैल्यू नहीं, अब एक नोड में एक से ज्यादा वैल्यू रहेगी तभी हाइट कम कर सकता हूं. So if we think about having multiple values in a single node, only then we can decrease the height. ठीक है, एक नोड में एक वैल्यू थी तो दो पाथ. अगर एक नोड में दो वैल्यू है तो तीन पाथ हो जाएंगे. अगर एक नोड में एक ही वैल्यू है तो उसकी लेसर ऑन द लेफ्ट, ग्रेटर ऑन द राइट, दो पाथ. लेकिन अगर एक ही नोड के अंदर दो वैल्यू है तो V1 से छोटी लेफ्ट साइड, V1 से बड़ी राइट साइड, लेकिन वो सारी की सारी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? V2 से छोटी होनी चाहिए. वी आर टॉकिंग अबाउट सर्च ट्री, सो all these values will be less than V1. All these values will be greater than V1 and less than V2. And the third path is greater than V2. So we have three different path. अगर दो वैल्यू है तो तीन पाथ, चार वैल्यू है तो five different paths you can decide. But this says m way, m paths, तो वैल्यू कितनी हो सकती है? m-1. So now what we are talking about is, in a binary search tree there was only one value in each node and then there were two subtrees. So overall height ट्री का बढ़ रहा था. अगर उसको मुझे कंप्रेस करना है तो मुझे एक ही नोड में एक से ज्यादा वैल्यू डालनी पड़ेगी. सो हियर कम्स द जनरलाइजेशन प्रोसेस. जनरल ट्री, जनरल ट्री क्या था? You have multiple children. General tree क्या था? You have multiple children. Along with that, we keep multiple values here. So M-way search tree ये बोलता है कि उसके अंदर आपके पास m-1 वैल्यू और m डिफरेंट सब ट्री हो सकते हैं. That's the upper limit. M can be anything. M way, I can say 3 way, 5 way, 7 way, 6 way, and so on. So M can have some value, and depending on that value you will decide कितने सब ट्री और कितनी वैल्यू. 6 way, 6 पॉइंटर, 5 वैल्यू होनी चाहिए. Is it clear? So if I say 6 way, then there will be 6 pointers. There will be 6 pointers, 5 values. जितने way उतने pointer. Simple. So that node will be something like, if I talk about 6 way tree, तो उसका node कुछ इस तरह से बनेगा. A node will have pointer 0, pointer 1, pointer 2, pointer 3, pointer 5, P0 to P5. टोटल 6 पॉइंटर हो चुके. अब डेटा कितना होगा? D0, D1, D4 up to D4. D0 to D4 4, 0 to 4 टोटल 5. So 5 वैल्यू
और 6 पॉइंटर आपके पास होंगे. दिस इज हाउ योर नोड विल लुक लाइक. सिंपल नोड आपको कुछ इस तरह से दिखता है. Right? A simple node, you think about a single data and 2 pointer, left and right pointer. Yes? Sorry? It is D1, D0, D1, D2, D3, D4. So D0, D1, D2, D3, D4. So total 5 data and 6 pointers. Huh? P1 D0 ने पॉइंट नहीं करा, D1 ने पॉइंट नहीं करा. D is your data, P is your pointer. P1 एक अलग नोड को पॉइंट करेगा जिसके पास वैल्यू D0 और D1 के बीच होगी. Right? P1 is pointing to a node which will have data in between D0 and D1. Well, confusion hai? Let us have a look at the example. So M is a degree of a tree. वो degree of a tree हमने already देखा था. Degree of a node in a tree. Number of children will be the degree of node. So M way, number of children, that becomes the degree. बाइनरी सर्च ट्री की बात करते हो तो डिग्री 2 है, तो उसको हम 2 वे बोल सकते हैं, बट इट हैज अ स्पेसिफिक नेम, बाइनरी. सो दिस इज द एग्जाम्पल. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एम वे सर्च ट्री. सर्च ट्री है तो कभी भी देख लो छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड, बड़ी वैल्यू राइट साइड होनी चाहिए. चेक इट आउट. Right? P0, P1, P2, D0, D1. All the values on left of 18 must be less than 18. तो 18 के लेफ्ट में क्या क्या है? 9 and 11. Perfect, no problem. All the values on right of 18 must be greater than 18. तो 18 के राइट में क्या क्या है? 27, 29, 30, 36, ये सब कुछ राइट में. So it is greater than 18. But along the side, it is also on the left of 45. मतलब बीच में जो कुछ भी है, जितना भी है, वो सब कुछ 18 से बड़ा और 45 से छोटा होना चाहिए. Then we can say it is a search tree. And yes, it is. And 45 के राइट में सब कुछ 45 से बड़ा. Now the same thing must be followed at every node. Not only the root. आप बीच वाला भी कोई नोड पकड़ लो तो देखो lesser on the left, greater on the right follow होता है या नहीं. Okay? Same thing is being followed here also. 63 के राइट में अगर है तो 63 से बड़ी वैल्यूज है. So we can say fine, it is a search tree. This given tree is a search tree. अब इसके लिए if you say this is M way search tree, तो M की वैल्यू क्या हो सकती है? यहाँ पे M की वैल्यू क्या हो सकती है? Y3 not only root, but the maximum pointers that you find here is 3 pointers. So you can say this is 3-way search tree. मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंटर आप कहीं भी देख लो तो कितने दिख रहे हैं?
तीन पॉइंटर दिख रहे हैं, कहीं भी आप देखो तो मैक्सिमम 3 दिखे. दिस कैन बी 3 वे. नाउ दिस कैन ऑल्सो बी 4 वे, 5 वे, 6 वे, 10 वे. कैन बी. एज ऑफ नाउ हमें तीन पॉइंटर दिख रहे हैं, सो ओके, वी विल से दिस इज अ 3 वे सर्च ट्री. Why am I talking like this? In fact, it is not necessary that every node contains exactly m minus 1 values and exactly m sub tree. ये जरूरी नहीं है. जब आप ट्री बनाते हो तो क्या जरूरी है आपके पास उतनी वैल्यू होगी ही होगी? नहीं है तो क्या करोगे? नहीं है तो क्या करोगे? कम होगी ना. इफ आई से दिस इज अ 5 वे बी ट्री, तो 4 वैल्यू आपके पास होनी चाहिए. जरूरी है? It's not necessary. So that's why what it says, it is not necessary that you have exactly these many pointers and these many values. This is the upper limit. Maximum इतना हो सकता है. So at max you can have m pointers. At max you can have m minus 1 values. Minimum खाली नहीं होना चाहिए. मिनिमम इट शुड नॉट बी एम्प्टी. अगर एम्प्टी है तो नोड की जरूरत ही नहीं. हाँ, तो मिनिमम क्या? एक वैल्यू. योर नोड शुड कंटेन मिनिमम 1 वैल्यू. और अगर एक वैल्यू है तो 2 पॉइंटर तो वैसे ही बन जाते हैं आपके पास, राइट? सो द रेंज विल बी इन बिटवीन 1 to m minus 1. मिनिमम एक वैल्यू और मैक्सिमम m minus 1 वैल्यू हो सकती है when we talk about m way search tree. m way search tree की अगर बात करते हो तो मिनिमम एक वैल्यू और मैक्सिमम m minus 1 वैल्यू हो सकती है. पर उस लिहाज से मिनिमम 2 पॉइंटर, मैक्सिमम m पॉइंटर्स हो सकते हैं आपके नोड के पास. Then it is called m way search tree. So m is just giving you the upper limit. M will give you the upper limit. Now let us understand B tree. m way search tree तो समझ लिया. उसके बाद सिर्फ अपर लिमिट है, लोअर लिमिट तो है ही नहीं. मिनिमम एक ही वैल्यू रख सकते हैं अगर हम नोड के अंदर, तो वो तो हो यही हो गया, बाइनरी ट्री जैसा ही हो गया ना, एक वैल्यू और 2 पॉइंटर. अगर मिनिमम एक वैल्यू रह सकती है तो उसमें और बाइनरी में क्या फर्क? कुछ नहीं. So if you want to have a B tree ये बोलता है कि आप मिनिमम पे भी कंस्ट्रेंट लगाओ. मिनिमम कंस्ट्रेंट भी आप इंट्रोड्यूस करो, देन यू विल हैव B tree. क्योंकि हमें हाइट कम करना है तो मिनिमम भी मुझे कुछ फिक्स करना होगा. भाई कम से कम इतना तो होना ही चाहिए तेरे पास, इससे कम नहीं चलेगा. ओके. So, what is B tree? B tree is a specialized M-way search tree. M-way इस वजह से हमने पहले देखा. What is M-way search tree? एक नोड के पास एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है तो ज़्यादा पॉइंटर भी होंगे. M-way के केस में मिनिमम मैक्सिमम कंस्ट्रेंट कुछ अलग है, लेकिन B के केस में अलग रहेंगे. So B tree is a specialized M-way tree, M-way search tree. And now it is widely used in your disk. क्यों डिस्क? हार्ड डिस्क की बात करो तो कितनी बड़ी है? 1 TB 2 TB इज अ नॉर्मल नाउअडेज हार्ड डिस्क. ठीक है. SSD की बात कर लो, देन ऑल्सो 256 GB, 500 GB गीगाबाइट्स. डेटा कितना बड़ा है? आप कितना सारा अपने हार्ड डिस्क के अंदर
मूवी, सॉन्ग्स, फाइल्स, प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम, सब कुछ रखते हो अंदर. व्हेन यू सर्च समथिंग इन योर माई कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करने जाता है, क्या करेगा वो? कैसे सर्च करेगा? पूरा 1 TB का हार्ड डिस्क अगर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सर्च करना है तो टाइम ज़्यादा लगेगा. अ लीनियर सर्च, अगर वो लीनियर सर्च परफॉर्म करता है तो टाइम ज़्यादा लेगा. ठीक है, तो आप बोल सकते हो बाइनरी सर्च परफॉर्म कर ले, लेकिन आपका डेटा सॉर्टेड है. यू डू नॉट हैव योर डेटा सॉर्टेड. हार्ड डिस्क में क्या आपका डेटा सॉर्टेड है? नहीं है, तो वो बाइनरी सर्च परफॉर्म नहीं कर पाएगा. अब क्या करूं? तो वो बोलेगा अरे यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर लीनियर सर्च में ही जाना पड़ेगा. इट विल टेक टाइम. एंड एट दैट टाइम विंडोज में जब आप सर्च करते हो, एक येलो स्ट्रिप में एक मैसेज लिखा हुआ आता है, इंडेक्सिंग एनेबल करो तो सर्च फास्टर होगा. ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक मैसेज देता है, तो भाई इंडेक्सिंग अलाउ कर दो मुझे, मैं एक इंडेक्स बना लेता हूं तो सर्च भी जल्दी कर पाऊंगा. व्हाट इज इंडेक्स? व्हाट इज इंडेक्स? बुक के लिए इंडेक्स क्या होती है? आगे टॉपिक एंड पेज नंबर. भाई आपका डेटा कहाँ पे है वो याद रखता है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम विल क्रिएट सम काइंड ऑफ इंडेक्स, और इंडेक्स के पास वो हर एक डेटा का परफेक्ट एड्रेस होगा. राइट? मूवी देखना है तो वो मूवी कहाँ पे पड़ा है उसका एड्रेस इंडेक्स के पास होगा. जब आप इंडेक्स से देखोगे, अच्छा ठीक है, प्लेट नंबर 3, ट्रैक नंबर 17, सेक्टर नंबर 50, दिस इज वेयर योर मूवी इज. हार्ड डिस्क में ऐसे काम होता है. फर्स्ट ईयर याद है तो हार्ड डिस्क देखा होगा, पढ़ा होगा, मे बी. मुझे मेरा लेक्चर याद है. ठीक है, I will not go in depth of hard disk structure, but this is how it remains, or it remembers the address. तो इंडेक्स के पास वो एड्रेस है, लेकिन इंडेक्स फिर से क्या करूं मैं? लीनियर सर्च में जाऊं, क्योंकि इंडेक्स भी एक बड़ा सा लिस्ट ही है ना. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंडेक्स के लिए ट्री बनाता है, सर्च ट्री. इंडेक्स विल बी प्रिपेयर्ड लाइक अ सर्च ट्री. हाँ, तो अब इंडेक्स के अंदर सर्च करना स्पीड अप मिल जाएगा. अगर वो इंडेक्स बाइनरी सर्च ट्री से बनता है तो एवीएल करो, लेकिन जब डेटा बड़ा है तो इंडेक्स भी बड़ा हो जाएगा, तो इंडेक्स को छोटा करने के लिए एमवे में जाएंगे. सो दैट इंडेक्स विल बी बेस्ड ऑन एमवे सर्च ट्री, और उसको अगर बैलेंस कर दिया तो बन गया बी ट्री. अगर उसको बैलेंस कर दिया तो बन गया बी ट्री. एंड हार्ड डिस्क के अंदर टू बी मोर स्पेसिफिक बी प्लस यूज होता है, बाद में देखेंगे. So what is B tree? A specialized M-way search tree. Widely it is used in disks. बट आप ये बोल सकते हो कि जहां भी आपका डेटा बड़ा है आप बी ट्री यूज कर सकते हो फॉर सर्च ऑपरेशन. ठीक है, सो बी ट्री इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर systems that read and write large block of data. Whenever you have a large data, you go for B tree. डेटाबेस की बात करो तो भी यही आ जाता है, बिकॉज एट द एंड इट इज द फाइल सिस्टम. डेटाबेस जो है वो भी डेटा तो आपका हार्ड डिस्क में रखेगा, कुछ फाइल सिस्टम के थ्रू इट गोज टू हार्ड डिस्क, मेक्स यूज ऑफ बी ट्री. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एम वे बी ट्री, बिकॉज बी ट्री इज बेस्ड ऑन एम वे, और एम की वैल्यू बदलती है तो ट्री भी बदलता है. So we are talking about something like a 3-way B tree, or maybe 5-way B tree, or something like 7-way B tree, right? Now when there is value of M
it gives you the upper limit, maximum m-1 values and m सब trees. तो ये अपर लिमिट तो फिक्स है. अब पहले लोअर लिमिट कुछ था ही नहीं, एक वैल्यू और 2 पॉइंटर वाला लोअर लिमिट था, हमें वो अच्छा नहीं लगता. सो हम लोअर लिमिट जो है उसको बदलेंगे. वी विल से एटलीस्ट हाफ पॉइंटर्स एंड हाफ वैल्यूज मस्ट बी देयर. मैक्सिमम m पॉइंटर है तो मिनिमम हाफ m/2 पॉइंटर होने चाहिए. दैट्स व्हाट आई वांट. सो इन टर्म्स ऑफ B tree, if I say it is m way B tree, तो पॉइंटर और वैल्यू दोनों के लिए मिनिमम मैक्सिमम आप डिसाइड करोगे. मैक्सिमम द अपर लिमिट वी ऑलरेडी नो, m वे, तो m पॉइंटर्स, वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 लेस, m-1. Now in the minimum we impose a constraint. Minimum half pointers must be there. इतने तो होने ही चाहिए. तो वैल्यू कितनी हो सकती है? इसका डिवाइड बाय 2 किया तो इसका डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, राइट? हाफ वैल्यू होनी चाहिए. नाउ टू बी मोर स्पेसिफिक, एक तरह से आप क्या देखते हो, यहां से एक कम किया तो यहां से एक कम करो. Well, there won't be more difference in these two. Most of the time, theoretically, you will find this one, m-1/2. But practically, you will find this is more perfect. Divide by 2, -1. Divide by 2, -1 perfect क्यों लगेगा ज्यादा? जितने पॉइंटर्स हैं उससे एक कम वैल्यू, वो ज्यादा परफेक्ट है. बट इट्स ओके, आप ये लिखो या ये लिखो, इट्स ओके, चलेगा. व्हेन यू आर राइटिंग थ्योरी, शॉर्ट नोट और एक्सप्लेनिंग समथिंग, दिस इज ओके. लेकिन जब आप प्रैक्टिकली कुछ परफॉर्म करते हो तो फिर आप ये इक्वेशन पे नहीं जाओगे, आप सिर्फ इतना याद रखोगे. नीचे तो -1 ही करना है ना. So let me give you one example. If I say it is 6-way B tree, if I say it is 6-way B tree, तो मैक्सिमम 6 पॉइंटर, मिनिमम कितने हो जाएंगे? मिनिमम कितने पॉइंटर हो जाएंगे? 3. आपको सिर्फ यही याद रखना है, बाकी वैल्यू -1, वैल्यू -1. व्हाट इफ अगर 5-वे है तो मैक्सिमम 5 पॉइंटर्स, मिनिमम 2.5. आधा पॉइंटर तो नहीं रख सकता मैं, सो विल गो फॉर मिनिमम 2 पॉइंटर्स. तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 and 1. So this is how you should keep a table side by. जब भी आप बी ट्री के साथ काम करते हो तो ऐसा एक छोटा सा टेबल बना के साइड में रख लो. That will always help you to decide minimum and maximum constraints. Well, so when we impose minimum constraints तो बन जाता है बी ट्री. अब बी ट्री में रूट नोड जो है वो एक्सेप्शनल केस है. रूट नोड इज अ एक्सेप्शनल केस. भाई मैं तो रूट हूं, मैं अपनी खुद की चलाऊंगा और उसको
मतलब उसका मानना भी पड़ेगा भाई वो रूट है। व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर ट्री, अगर आप ये बोलते हो कि 5-वे बी ट्री बना रहा हूं, शुरुआत तो एक ही वैल्यू से होगी, शुरुआत एक ही वैल्यू से करते हो आप, और वही आपका रूट नोड बनता है, और रूट नोड के पास एक वैल्यू, 2 पॉइंटर है, क्या वो हर वक्त मिनिमम कंस्ट्रेंट फॉलो करेगा? if i say it is if I say it is 6-way B tree, सिक्स 3 5 2, मिनिमम 2 वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन जब मैं स्टार्ट करता हूं मेरे पास एक ही वैल्यू है और वो मेरा रूट है, 2 वैल्यू तो रख ही नहीं पाएगा वो। सो वी से रूट नोड इज एक्सेप्शनल केस हियर। आप रूट को एक्सेप्शन चलेगा, मान लो उसके पास एक ही वैल्यू है फिर भी चलेगा, बाकी सारे नोड ये फॉलो करने चाहिए कंपल्सरीली, देयर इज नो अदर वे। सो अ रूट नोड इज एक्सेप्शनल केस हियर, बाकी के जितने भी नोड है ये अगर फॉलो करते हैं तो आप बोल सकते हो कि इट इज समथिंग वे बी ट्री। सो नाउ टेल मी, इज दिस अ बी ट्री? और अगर बी ट्री है तो एम की वैल्यू क्या? कैसे चेक करोगे? सबसे पहले तो बी ट्री बनने के लिए एम वे होना चाहिए, सर्च ट्री होना चाहिए। तो पहले ये चेक कर लो, लेसर ऑन द लेफ्ट, ग्रेटर ऑन द राइट, हर एक जगह पे अगर है तो ये सर्च ट्री है, अगर है तो ये सर्च ट्री है। देन वी थिंक अबाउट एम, वैल्यू ऑफ एम। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंटर्स आर 4। यहां पे आपको सबसे ज्यादा 4 पॉइंटर दिख रहे हैं, राइट? सो वी से दिस इज 4-वे, दिस इज 4-वे। तो ठीक है, 4-वे सर्च ट्री तो बन गया। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये 4-वे बी ट्री है या नहीं। तो बी ट्री के लिए मैक्सिमम मिनिमम कंस्ट्रेंट, 4-वे के लिए मैक्सिमम 4 पॉइंटर, मिनिमम 2 पॉइंटर, तो फिर वैल्यू हो जाएगी 3 और 1। अगर ये हर एक जगह पे फॉलो होता है देन आई कैन से दिस इज 4-वे बी ट्री। check it out. Yes or no? Yes. So everywhere minimum constraint is also being followed, so fine, this is 4-way B tree. You focus on one thing here. All the leaf nodes are at same level. मैंने जगह ना होने की वजह से ऊपर नीचे ड्रॉ किए, बट if you focus on the length from root to leaf, it is always 2. रूट से लीफ नोड का पाथ देख लो, हर एक जगह पे 2 है। All the leaf node are at a same level. A B tree is always a perfectly balanced tree. एक का भी डिफरेंस नहीं चलेगा। AVL में आप एक का डिफरेंस चलाते थे, यहां पे ये बोलेगा भाई नो डिफरेंस, एंटायर ट्री मस्ट बी परफेक्टली बैलेंस्ड वन, तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ, હા પણ એ નલ હશે ને, અને જો નલ નહીં હોય તો બે બાજુ એક એક નોડ હોવો જોઈએ, બે બાજુ એક એક નોડ હોવો જ જોઈએ।
and that will be maintained. How we will see when we see the insert operation on B tree. B tree will grow upward. B tree will grow upward direction. बाइनरी सर्च ट्री में नया नोड हम नीचे डालते थे तो नया नोड नीचे क्रिएट किया था हमने. यहां पे ऐसा नहीं होगा. बी ट्री में आपकी नई वैल्यू जो है वो कोई एग्जिस्टिंग नोड में जाएगी और जब भी प्रॉब्लम होता है तो एक वैल्यू को आप ऊपर भेजोगे एंड विल क्रिएट न्यू रूट. हम नया रूट बनाएंगे. वेल, right now you should think you should just be focusing on every leaf nodes are at the same level. So how do we insert a value in B tree? Let us see insert operation and then we'll stop. It's not a tough one, it is very easy. Just carefully understand all these statements. All insert operations are done at a leaf node. At a leaf node. नया नोड नहीं, समझ लो. Existing leaf node. जो भी लीफ नोड है वहीं पे इंसर्ट होगी वैल्यू. आप नया नोड क्रिएट नहीं करोगे. ठीक है. लीफ नोड तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट वी हैव टू सर्च दैट लीफ नोड. वी हैव टू गो एंड सर्च अ नोड where I can insert that value. So we go and search a tree to find the leaf node where I can insert that new value. अब कैसे सर्च करेंगे? Well, this is a search tree. आसानी से lesser on the left, greater on the right सर्च कर सकते हैं हम. When we reach up to the leaf node, जैसे ही हम leaf node पे पहुंचते हैं, then उसी leaf node में मुझे नई वैल्यू को insert करना है. So we are going to insert a new element into that leaf node by following further steps. Now if that node, जो भी leaf node आपको मिला है, if that node contains fewer than the maximum legal number of elements, maximum constraint, m वे है तो वैल्यू कितनी होगी? m-1. m-1 मैक्सिमम वैल्यू अलाउड है. अगर उससे भी कम है, फ्यूअर देन द मैक्सिमम वन, तो उसके पास जगह है. अगर मैं ये बोलता हूं 6 वे बी ट्री, तो मैं नोड के अंदर कितनी वैल्यू रख सकता हूं? 5. मैं 5 वैल्यू रख सकता हूं. बट ये तो बोल रहा है कि भाई उसके पास 5 भी नहीं, उससे भी कम है, तो डेफिनेटली उसके पास जगह खाली है. देन there is a room for a new value. You simply insert a new element. उस नोड में आप अपनी नई वैल्यू को डाल दो. हाँ, लेकिन कैसे डालोगे? Make sure nodes elements are ordered, क्योंकि वो सर्च ट्री है. असेंडिंग ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए. तो आप नई वैल्यू जो भी डालते हो वो नोड के अंदर आपके एलिमेंट्स सॉर्टेड रहने चाहिए. बाकी काम खत्म. So if there is a room, no problem. Store your value and your process is over. अगर उसके पास जगह नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. If there is no room available, if there is no space, so we go for the otherwise. And in otherwise, what we'll do is we'll split that node into 2 sub nodes. हम उसको तोड़ देंगे. बलून के अंदर आप हवा भरते हो, जब तक जगह है हवा भर सकते हो. जब जगह नहीं है तो क्या होगा? सो नोड के पास भी अगर जगह नहीं है तो वो टूटेगा.
कहाँ से टूटेगा, कैसे टूटेगा, हमें डिसाइड करना है भाई, हम डेवलपर है. So in that case, we are going to split that node, but कहाँ से split करेंगे? We will select a single median value. Look, I'm saying median value, not simply a middle value or average. Average नहीं बोल रहा हूँ, because average or middle will be outside of your set. Median is part of your set. So it is something like कि अगर आपके पास 5 वैल्यू हो गई, मान लो कि मैक्सिमम 4 वैल्यू अलाउड थी 5 वे बी ट्री, लेकिन जैसे ही आपने नई वैल्यू डाली तो आपके नोड के अंदर 5 वैल्यू हो गई. सो हमें प्रॉब्लम है, अपर लिमिट क्रॉस कर गया. सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू स्प्लिट दैट नोड फ्रॉम द मीडियन वैल्यू. 10, 12, 15, 20 और 50 का एवरेज कुछ अलग होगा, right? So I'm not saying average or a middle value of this range, I'm saying a median value. मतलब ठीक है, बीच में जो वैल्यू बनती है सॉर्ट करने के बाद उसको. We are going to split this node from this median value. यहां से हम इसको स्प्लिट करेंगे. ठीक है, अगर स्प्लिट करने जाते हो तो वो क्या बोलता है? You split from that element values less than the median, values less than the median, we are going to put it in the left node. So 15 से छोटी वैल्यू जितनी भी है उसको एक लेफ्ट नोड में डालो. This is a left node. Then it says greater values compared to median, we are going to put it in the right node. ठीक है, तो बड़ी वैल्यू जितनी भी है उनको एक राइट नोड में डालो. And your median will act as a separation value. तो वो बन जाएगा एक नया रूट, वो बन जाएगा एक नया रूट. पहले एक ही नोड था, वही रूट था, लेकिन जब आप स्प्लिट करते हो तो रूट नया बनता है. और जब आपका रूट नोड स्प्लिट होगा तो हाइट 1 से इंक्रीज होगी. ट्री की हाइट कब इंक्रीज होगी? व्हेन यू स्प्लिट योर रूट नोड. बाकी कोई भी नोड स्प्लिट कर लो, फर्क नहीं पड़ता, हाइट जितनी है वही. जब आपका रूट नोड स्प्लिट होता है तभी हाइट इंक्रीज होती है, तब तक नहीं. सो दैट्स अ बेनिफिट फॉर अस. जितना मैक्सिमम पॉसिबल है मैं हाइट को वही रखता हूं. व्हेन देयर इज नो पॉसिबल वे, तभी मैंने हाइट इंक्रीज किया, तब तक नहीं. Well, so this is how split operation will work. If there is no room available, तभी आप नोड को स्प्लिट करोगे और बीच में जो वैल्यू है वो ऊपर जाएगी. हाँ, ऊपर का एक्सिस्टिंग पेरेंट है तो उसके पास भेज दो. अगर ऑलरेडी कोई पेरेंट है तो बीच वाली वैल्यू को पेरेंट के पास भेज लो, भाई तू जा ऊपर जा, बैठ जा. अच्छा, ऊपर जाके करेगा क्या? वहां पे जगह है, पेरेंट के पास जगह है तो रख लेगा, नहीं है तो उसको भी स्प्लिट करो. इफ पेरेंट नोड हैज एम्प्टी स्पेस तो वो बीच वाली वैल्यू को रख लेगा, अगर नहीं है तो वो भी स्प्लिट होगा, मिडिल वैल्यू जाएगी ऊपर. इवेंचुअली योर स्प्लिटिंग प्रोसेस विल इटरेट and every time median value will be transferred to the parent. धीरे 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 आप शायद रूट तक पहुंच जाओ, और अगर रूट के पास स्पेस नहीं है तभी रूट को स्प्लिट करोगे और एक की हाइट इंक्रीज होगी. राइट? So that is the insert operation on
बी ट्री. चलो देखते हैं विथ सम एग्जाम्पल. What if I say I want to create 5-way B tree? Order is 5. So ठीक है, 5-way. Yes. મેક્સિમમ કન્સ્ટ્રેન્ટ વાયોલેટ થાય તો જ સ્પ્લિટ કરવું છે, નહીં તો નહીં. જગ્યા છે તો રાખી લો ને, સ્પ્લિટ શું કામ કરશો? જગ્યા છે તો રાખી લો. ઓછા ક્યારે થશે? પોઈન્ટર ઘટશે. શું કામ? તો એની પાસે જગ્યા બની કે નહીં? સમજાય છે? હું એમ કહું કે 6-વે છે તે પોઈન્ટર ઘટાડ્યા, વેલ્યુ ઘટી ગઈ તો જગ્યાએ બની ને. Okay, so 5-way B tree, we want to create a 5-way B tree here. So let us keep this table side by. So we are talking about, okay, 5-way, maximum pointers 5, then minimum pointers 2. So number of values 4 and 1. We are going to maintain this thing. Okay, let's start with the first one. Insert 10. Entire tree is empty. So the first one that we create will become a root node. That is the leaf node. And as long as it is a root, वो कोई minimum maximum मतलब minimum constraint follow नहीं करता. Maximum तो उसको करना ही पड़ेगा. So fine. Let's go for second. Insert 30. Find a leaf node जहां पे आप 30 को इंसर्ट कर पाओ. रूट नोड वही लीफ नोड था. फाइंड अ लीफ नोड वेयर यू कैन इंसर्ट 30. तो वही लीफ नोड है, वही मैं 30 इंसर्ट कर सकता हूं. पर व्हेन आई इंसर्ट 30, ऑर्डर. So 30 10 के राइट साइड रखेंगे, राइट चाइल्ड में नहीं, राइट साइड में रखेंगे. डाउट नहीं? ओके फाइन. लेट्स गो फॉर थर्ड insert operation. Insert 25. Find a leaf node where you can insert 25. But when you insert a value, data must be in order. So 25 actually बीच में रहेगा, but it will go in the same node. Now till this time हमें कोई problem नहीं है, because maximum values कितनी allowed है? 4. अभी तो 3 ही value हुई. Fine, go for it. Insert 35. Find a leaf node where you can insert 35. So still that value goes in the same node. Now this node is full. 35 insert होने के बाद वो full हुआ, अभी तक कोई problem नहीं, ठीक है. Now let's go and insert one more value here. Insert 33. Find a leaf node where you can insert 33. But when we insert 33, node की maximum constraint जो है वो violate होती है. There is a violation on maximum constraint. तो हम क्या करेंगे?
we will split this node from the median value. एक बार वैल्यू वहां पे रख लो तो आपको पता चलेगा कि मीडियन कौन बनता है. ठीक है. So, well, we are going to split this node from 30. 30 will become a new root on the left side and on the right side. So finally, this is your B tree. Still, leaf nodes are at same level. Remember, leaf nodes are always at the same level. So B tree is always perfectly balanced. Now this is how it works. So ठीक है, अब आप और भी वैल्यू इंसर्ट करो 40, 45. You insert 40 and 45, क्या होगा? नो प्रॉब्लम टिल दैट टाइम. दो और वैल्यू इंसर्ट कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू इंसर्ट फ्यू मोर वैल्यूज 5, 7, कहाँ जाएगा? एट दिस प्लेस 5 and 7, स्टिल नो प्रॉब्लम. मतलब हाइट भी नहीं बढ़ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग वर्क्स प्रॉपरली. बट लेट्स से इफ यू इंसर्ट 37 नाउ, यहां पे कहीं ना कहीं जाएगा, बट दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. अगर प्रॉब्लम है तो मीडियन वैल्यू से उसको स्प्लिट करो. 37, वेल इस केस में 37 ही मीडियन है, तो वो जाएगा ऊपर और आपका जो नोड है वो स्प्लिट हो जाएगा. 37 जाएगा ऊपर एंड योर नोड इज गोइंग टू बी स्प्लिट. नोड के टुकड़े कर दिए. स्टिल हाइट इज नॉट इंक्रीज्ड. क्यों? क्योंकि 37 गया रूट के पास अभी भी जगह है. सो हर बार नई वैल्यू लीफ में इंसर्ट होगी. जब लीफ नोड स्प्लिट होता है तो एक वैल्यू पेरेंट के पास जाती है. पेरेंट के पास जगह है तो रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप इसमें और वैल्यू इंसर्ट करते जाओ, हर बार लीफ नोड में ही नई वैल्यू इंसर्ट होगी और जब प्रॉब्लम है तो एक वैल्यू रूट के पास आएगी. रूट के पास दो वैल्यू है और दो स्प्लिट ये बी ट्री हैंडल कर सकता है. और दो स्प्लिट मतलब रूट के पास 4 वैल्यू हो सकती है. बट आफ्टर दैट व्हेन स्प्लिट हैपेंस हाइट इंक्रीज होगी. करते जाओ इंसर्ट एंड iteratively you have to increase your height. So that's the insert operation on B tree. As I promised, we'll stop here for today. We have seen B tree insert operations. Few more examples you may go on and you can perform few more insert operations on a given B tree. Next lecture, we will see the delete operation. So that's all for today. Thank you, everyone. See you in the next lecture.